Hello, good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. Chalo. Can we start? Sir, Yes, sir. So we have decided to discuss the previous test today. तो देखो सब स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट है कि आप सब all of you, whether you are preparing for the CET or whether you are preparing for NEET, try to attempt all the test. Okay, जितने भी टेस्ट होंगे सब टेस्ट को अटेम्प्ट करते जाओ आप, राइट? क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, एक उसकी लिस्ट बनाऊंगा. नेक्स्ट टाइम से we will try to make a list कि how many students have given the test, और वैसे ही इन्फॉर्म करते जाएंगे ग्रुप पर. ओके, एवरी टाइम. सो Sir, इट्स नेसेसरी बिकॉज टाइमिंग भी बहुत देता हूँ मैं आपको. आप 2 से लेके 10 तक देता हूँ ना टाइमिंग. So some students are not attempting, most of them are attempting the test. Okay, so we were at this question. Please pay attention. Chalo, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Okay. So देखो, in dash in deuteromycetes, that fungi imperfecti, every metabolic process is Option B. imperfect. Only a sexual reproduction is known to be takes. The sexual reproduction is imperfect. The perfect stage is asexual. Yes, what is the answer? Option B, sir. Only a sexual reproduction takes Only a place. sexual reproduction is known to takes place. तो देखो deuteromycetes जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं imperfect fungi, and in the imperfect fungi only a sexual reproduction occurs. Only a sexual reproduction occurs. ठीक है. Next is the part of virus which gives the hereditary integrity is called as Nucleic acid.
हेरेडिटरी इंटीग्रिटी का मतलब है हेरेडिटरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरेडिटी, पार्ट ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरेडिटी, कौन सा पार्ट है? दैट विल बी द nucleic acid. It can be the DNA or RNA. So answer should be nucleic acid. Is it clear? Yes, sir. Next, heterotrophic fungi can live like, All of these. yes, they can live like a parasite. Can you tell me one example of parasitic fungi? Rhizopus. Rhizopus? Albugo. नाही अल्बिगो ते मस्टर्ड प्लांट वर ग्रो होतं ना. Parasitic fungi. Mustard, cabbage, इनको पुकिनिया. Albigo, yes. Then Pakshinia, right? Next, smut किसे बोलते हैं? Ustilago, right now? So all these are. Yes, smut and Fungi can be ustilago. parasitic, saprophytic, or can be symbiotic. Can you tell me one example of the symbiotic fungi? Or symbiotic association of the fungi? Lichen. There's one more. Mycorrhiza. Mycorrhiza. Yes, mycorrhiza. So answer is D, all of these. All of these. Binomial nomenclature consists of which of the following two words? Genus and species. Genus and species, option C. Genus and species. Genus and species. Yes, very good. Genus and species. Next, which of the following physiological process is exhibited by viruses? Self-duplication. 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 Where they can do the self-duplication? In the cell or outside? Inside the host. Host. Inside the host cell. Yes, inside the host cell. होस्ट सेल के अंदर वो डुप्लीकेशन दिखा सकते हैं. यस यस, वेरी गुड साइड. चलो, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ डुप्लीकेशन. नेक्स्ट इज डायडाश इज प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर. यस, इजी. Archaebacteria. Bacteria. What is the name of that archaebacter which is found in the bottom of the deep sea? Phytoplankton. Hey, Halophile. Halophile. नाही. Basophils. कोणते Yes, बताओ. Halophile strong है का? Yashi, you are not able to join through the laptop. Barophiles, sir. Barophiles. Yes, sir. Parophiles. Parophiles, not basophiles. Parophiles. Yashi, you have joined now already. सर अभी फोन से ज्वाइन किया, लैपटॉप से ट्राई करूँ तो हो नहीं रहा है. ओके, तो अभी जरूरत है क्या लैपटॉप से ज्वाइन करने की आपको? नहीं सर, इट्स ओके, बट वो रजिस्टर करने के लिए फिर से बोल रहा है. ओके, देन यू कैन रजिस्टर इट अगेन. आज आप रजिस्टर कर दो, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा. ठीक है? ओके सर. ओके, अभी तो आप ज्वाइन हुए हो ना, अभी कंटिन्यू करो. हाँ सर. ठीक है? ओके ओके, व्हाट इज द नेम? Barophiles. Parophiles. They are found at the bottom of the sea. और जो सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलोगे आप? सॉल्टी वाटर में जो होते हैं वो उन्हें क्या बोलोगे? Halophiles. Thermophiles. Halophiles. Thermophiles extreme heat मध्ये असतात ना thermophiles. Sir, but deep sea बॅक्टेरियाचा मध्ये प्रकारच आहे ना थर्मोफाईल, म्हणून म्हणलं. Okay. सर आता डीप सी मध्ये पण तो सॉल्टी वॉटर असणार आहे ना, मग हॅलोफाइल्स त्याला वेगळं बॅरोफाइल्स का? नाही, फक्त सॉल्टी वॉटर अप्पर लेअरला असू किंवा कुठेही असू. सॉल्टी वॉटर एनीवेअर इन द हाईली सॉल्टी वॉटर, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट? Halophiles. और जो बॉटम डीप सी का मतलब क्या होता है? डीप सी का मतलब होता है बॉटम. ऐसा कंसिडर करो आप. तो बॉटम में कौन होगा? Under म्हणजे pressure. ते वर नसतात. इट इज अंडर प्रेशर. यस, इट इज अंडर प्रेशर. उसे आप क्या बोलोगे? Barophiles. Barophiles. यस. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. और हाई टेम्परेचर में कौन होगा? Thermophiles. Thermophile. Thermophiles. यस, ठीक है. आर्कीबैक्टीरिया. नेक्स्ट इज रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन and Fungi. cell wall chitin. Fungi. Yes, Fungi. Fungi have the cell wall made up of a chitin. Chitin. Yes. Next is in bacteriophage.
सर हे DNA हेड रीजन काय आहे Is मीन्स present in respiration. bacteriophage. हेड Head, sir. The DNA is Head present in region. which region? हेड रीजन Head region. Bacteriophage. सर आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ केला होता. मधातला ह्या भागात सर तो वरचा हेक्सागोनल पार्ट. हेड. Head. ये क्या है? सर शीत. शीत. क्या है? टेल. टेल. Fast. Fast. You should are able to answer it fast. ठीक है? तो देखो आपको अगर बायोलॉजी में स्कोर करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये तो सब पता होना ही चाहिए, आपकी स्टडी तो होनी ही चाहिए, लेकिन यू शुड बी क्विक, थोड़ा सा क्विक होना चाहिए आंसरिंग में, क्योंकि आपको पी सी बी तीनों देने है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जरा सा ज्यादा वक्त लगता है ना, सबसे ज्यादा वक्त आपको लगेगा फिजिक्स के लिए, उससे कम वक्त लगेगा आपको केमिस्ट्री के लिए, और सबसे कम वक्त आपको लगेगा बायोलॉजी के लिए। लेकिन बायोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स है बायोलॉजी के लिए। कितने क्वेश्चन है? 90 क्वेश्चन। तो आपको 90 ये क्वेश्चन 90 क्वेश्चन के लिए अराउंड आप ऐसा कंसिडर करते हो कि 90 मिनट्स मिले आपको, ठीक है ना। तो यू शुड कंप्लीट इट इन 90 मिनट्स एटलीस्ट, 90 मिनट या फिर उससे पहले टाइम में ये कंप्लीट होने चाहिए क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में, तो आप स्कोर कर पाओगे, है ना। तो स्पीड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द लास्ट एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम होगी उसमें स्पीड भी आपका वैरी करेगा। तो स्पीड जब कब बढ़ेगा आपका? when you are solving many questions, जैसे हम देखो वीकली हम सॉल्व कर रहे हैं many questions, every week we are 3 days we are solving questions around 1.5 hour, हम एग्जाम भी ले रहे हैं, राइट। तो 4 to 5 days we are working over the MCQs, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ना चाहिए, और पिछले वाला याद होना चाहिए, पटकन आठवलं पाहिजे, हो जाएगा वो, लेकिन थोड़ा सा आप एफर्ट करो, थोड़ा सा घरी अभ्यास करा जरा जास्त, थोडा वेळ अभ्यास करायला सुरुवात करा, रिव्हिजन करायला सुरुवात करा, तुम्हाला सगळं काही येते, आपण इन डिटेल सर्व काही गोष्टी पाहिल्यात, you just start revising it, okay। अब देखो ये इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर? मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, इट कैन बी द डीएनए, दिस इज जनरली क्या, बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड, है ना। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो अब देखो व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर? हेड। हेड सर. नेक्स्ट इज decomposers are हेटेरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉफिक। decomposers are heterotrophic, है ना, बरोबर आहे का रे? येस सर. हाँ, sir. Decomposers are heterotrophic. Yes, next. Which of the following organisms are generally classified as protist? कौन है प्रोटिस्ट? पहला बैक्टीरिया, इसमें ये नहीं हो सकता। दूसरे में देखो प्रोटोजोआ, सम algae एंड स्लाइम मोल्ड, सम algae आर इंक्लूडेड। कौन से डायटम्स? गोल्डन algae, पता है ना आपको, राइट। सो डायटम्स sir. गोल्डन algae आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ like amoeba, पैरामोशियम, ट्रिपैनोसोमा, then plasmodium malariae, ये सब प्रोटोजोआ है ना। तो all these are included in the protist, so option B should be correct here। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन बी, राइट। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. By means of dash dash the sexual reproduction may occur in fungi, by means of dash dash sexual reproduction can occur in fungi। ऑप्शन डी। देखो स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, इसे हम स्पोरेंजियम भी बोलते हैं ना। तो स्पोरेंजियम जो होता है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, कोनिडिया, ये टाइप के कौन से स्पोर है? स्पोरेंजियोस्पोर है, या फिर अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर आर असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, एस्कोस्पोर आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, बेसिडियोस्पोर आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। अब इसमें ये क्या मतलब हुआ इसका? स्पोरेंजियोस्पोर्स आर असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करके ए नहीं हो सकता। जूस्पोर, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, जूस्पोर तो असेक्सुअल स्पोर है ना, तो जूस्पोर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, दिस कैन बी द
sexually producing, but zoospore is not. So sporangiosspore, zoospore, oospore and ascospore. Again यही आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोल्डी क्या चेंज किया उन्होंने, यहाँ पे जस्ट बेसिडियोस्पोर चेंज, राइट. सो oospore, लेकिन यहाँ पे देखो sporangiosspore is asexual, here also sporangiosspore is asexual, here zoospore is asexual. रिमेनिंग क्या बाकी है अभी, oospore, ascospore, बेसिडियोस्पोर. oospore जो होता है उसमें zygospore जैसे स्ट्रक्चर बनता है ना, oospore, ascospore, बेसिडियोस्पोर. ये तीनों भी स्ट्रक्चर कैसे कैसे ये तीनों भी कैसे है, सेक्सुअल है सर। सेक्सुअल है. सो यहाँ पे आंसर शुड बी डी बिकॉज ऑल दीज आर द सेक्सुअल स्पोर्स. नेक्स्ट इज वायरड इज डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस बाय बीइंग. वायरड के अंदर क्या नेकेड होता है, आरएनए सर। नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल ओनली. वेरी गुड. सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. नेकेड आरएनए molecule is present, so only a naked RNA is present in the viroid. viroid में naked RNA आपको दिखाई देता है. किसने डिस्कवर किया था वायरॉइड, थियोडर डायनर ने. ठीक है. नेक्स्ट, which of the सर वायरॉइड कडे सर्क्युलर डीएनए असतो ना. वायरॉइड सर नंतर तो सर्क्युलर होतो, म्हणजे सेल मध्ये गेल्यानंतर तो सर्क्युलर होतो. इट कॅन बी सर्क्युलर, राइट. नेक्स्ट इज ओके, म्हणजे सिंगल स्ट्रँडेड सर्क्युलर डीएनए वायरॉइड असं ना. yes. Next is which of the following is true about the ascospore. The ascospores are just Meiospores. why meiospore, Advait? सेक्शुअल आहेत ते. हाँ सेक्शुअल है. Yes, these are sexual, so these are meiospore. चलो, all others are agreed with this. Madhura, Athar Parab, Asmita, Arya, Yashi, Bhargavi. Do you agree with this? That these Yes, are sir. meiospore. Yes, bata. Yes, sir. Yes, sir. Yes, these are meiospore. Okay, chalo, next question is the group of interconnected genera. What you will call this? Family. फैमिली। Yes, the group of interconnected genera is a family. Genera से क्या बनता है, family बनता है. Next is who gave binomial system of nomenclature? Carolus Linus. Carolus Linus. So your answer should be D. Here लिनस सर। D. सर याचं नाव गुगल वर कार्ल लिनस दिलेलं आहे. ते कार्लस आहे का कार्ल आहे? Carl is a short form. Carolus Linus. Okay, तो वो short form है उसका. ओके. कार्ल आणि कार्लस दोन्ही एकच आहे. ठीक है. अब देखेंगे एनालिसिस एंड सॉल्यूशन. एनालिसिस एंड सॉल्यूशन कोई भी ब्रांच ले लो. तो 45 questions we have completed. Earlier 25 questions last day we have completed. जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है 11 वाला 11:10 बजे लेक्चर था वो. अगर वो आपने देखा नहीं है, मिस किया है, तो देख लो एक बार. चलो अब देखेंगे हम. जस्ट अ मिनट. लास्ट टाइम डेट क्या थी लास्ट सैटरडे की, प्लीज टेल मी. लास्ट सैटरडेज डेट 30 कितना है? 31 था सर. नहीं हाँ 31 था. 31. दिख रहा है आपको डेट यहाँ पर कहीं पर? बायोलॉजी बायो देखो पूरे क्वेश्चन दिखते हैं इसमें. ये नहीं है सर पुढे जा, मुझे पुढे हाँ, सापडेल. इसके आगे नहीं होगा. देखो यहाँ पे देखो 30 10 होता का? नहीं सर उसके आगे.
31st था ना? हाँ सर। लेकिन ये रैंडम आता है ना इसमें, देखिए देखो रैंडम आते डेट हैं, रैंडम आते हैं इसमें। सर आप स्क्रॉल करो, हम देखते हैं। या स्क्रॉल किया मैंने, पार्ट में नहीं है। सर आपके इसमें डेट, मंथ एंड ईयर है ना, वैसे ही है ना? हाँ हाँ हाँ, डेट मंथ एंड ईयर वैसे ही। सर ये हम बहुत पीछे आ गए। हाँ सर बहुत पीछे है ये। ये जुलाई 9 सितंबर है। हाँ सर, अभी देखो आप खाली मंथ देखते जाओ। आई थिंक हमें और इट्स लाइक हाँ मतलब ये 31st मीन्स लास्ट ईयर ना। तो ये लास्ट दिखाई दे रहा है, इसके आगे यही नहीं एंट्री, ऐसे कैसे हो सकता? सर ते 4th में होगा शायद। सर नीट पेपर हाँ सर, नीटचं पण डिस्कशन चालेल सर, त्यात पण डाउट्स होते. नीट का पेपर ही देख रहा हूँ मैं। सर ते उधर नीट 2020 आहे ना वरती. नाही ते नाही, ते नाही, ते वेगळं आहे, ते वेगळं आहे बाबा. सर ही सीईटीची एक्झाम होती, सीईटी टाकून दे. बायोलॉजी का टेस्ट देखो 10-10, उसके बाद हाँ सर 15 नंबर. ये देखो ये वाला. 15th. ओके चलो किसी का भी एक पेपर ओपन कर लेंगे, देख लो अभी. Okay, who proposed the universally accepted double-stranded helical structure for a DNA molecule? वॉटसन एंड क्रिक. तो जो वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, ऐसे इसे बोलते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए. कौन सा फॉर्म? बी बी फॉर्म. फॉर्म. या फिर इसे और एक नाम, इसे बोलते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स. ये प्रपोज किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक. याद रखो, बी फॉर्म ऑफ डीएनए या फिर इसे राइट हैंडेड हेलिक्स बोलो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीऑक्सीराइबोज ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड? लाइकोज. ग्लुकोज सर. सुनो सुनो सुनो, नीट पेपरच्या इव्हॅल्युएशन करा ना, करतो ना नीट पेपरचं पण. आता एक एक पेपर होईल ना सॉल्व. व्हाट इज द डीऑक्सीराइबोज ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड? That is a glycose, none of these. What is a deoxyribose? ये deoxyribose क्या होता है डीएनए का? क्या वो एक ग्लाइकोज है? It is a oligosaccharide. It is a glycan. None of these. इसका आंसर है none of these. It is सर ग्लाइकोज नसतं ना ते. नहीं, it is not a glycose. इसका आंसर होना चाहिए none of these. ठीक है? It is a deoxyribose sugar ना, ये एक टाइप की पेंटोस शुगर होती है. हाँ, टाइप ऑफ पेंटोस शुगर, याद रखना. डीएनए में जो 9th मध्ये होतं सर. यस, इट इज अ पेंटोस शुगर. रेफरेंस ने मैंने वीडियो ऑप्शन बताया था आपको. ठीक है, नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस द टर्म न्यू सिस्टेमैटिक्स? ये पता है ना आपको, ये ऑलरेडी हमने लिया था क्वेश्चन में. जूलियन हक्सले. जूलियन हक्सले ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, न्यू सिस्टेमैटिक्स. ओके, वैसे तो सिस्टेमैटिक्स किसने बताया था? डू यू नो व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स? Systematic branch of biology that deals with the systematic classification of the organism, है ना? किसने लिखा था ये वर्ड systematics? लिनस ने बोला था इसे. लेकिन ये न्यू सिस्टेमैटिक्स नहीं था. न्यू सिस्टेमॅटिक वॉज प्रपोज बाय द जूलियन हक्सले, याद रखना. ठीक आहे. सर काय चेंज केला तिने? न्यू सिस्टेमॅटिक्स मध्ये त्याने यूज केला RNA चा. कोणाचा? दे हॅव यूज्ड, yes, RNA is used for studying the evolution. evolution का स्टडी करने के लिए RNA का यूज किया था. ठीक है. नेक्स्ट इज, याद रखना इतना. नेक्स्ट इज
Angiosperm that are characterized by the presence of the adventitious roots and parallel venation are also characterized by dash dash phyllotaxy. मैंने आपको ये बताया था ना उस दिन, ये हमने क्वेश्चन भी लिया था ऐसा, ऐकून घ्या. What is the question? The question is that angiosperms are characterized by the adventitious roots and they can be characterized by the parallel venation and they have dash dash type of phyllotaxy. इसका मतलब समझ लो क्या. जस्ट अ मिनट. एंजियोस्पर्म्स हमने देखे थे, आप सबने लेक्चर किए होंगे, ठीक है. एंजियोस्पर्म के बारे में मैंने लिख के दिया था आपको. एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड, वेदांत, एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज मोनोकोटिलेडॉन एंड सेकंड इज आठवतं का? Dicots. Monocots and dicots. These are the angiosperms, right? Disturbance. Just a minute. Sir. चलो, एंजियोस्पर्म्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. इन दोनों में के डिफरेंस पता है ना, मैंने लिख के दिए थे आपको और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था रूट्स कैसे होते हैं, है ना. तो मोनोकॉट्स में मैंने बताया था एग्जांपल आपको ग्रास का, हटो का ग्रास. ग्रास के पास रूट्स कैसे होते हैं? एडवेंटिशियस. कौन से वाले रूट? Fibrous roots. Fibrous. Adventitious roots are present towards the grass, means in the monocot. और dicot में कैसे होते हैं? Taproot. Yes, true root. इसे आप क्या बोलते हो? Taproot. Right? अब monocots में जो लीफ होता है, लाइक बनाना का लीफ, आपने देखा है ना बनाना का लीफ, हाँ? जो लीफ होता है या फिर ग्रास, Parallel venation. इसमें ऐसे वेनेशन दिखता है, क्या बोलते हैं हम इसे? Parallel venation. Yes, very good. So this is parallel venation. Venation कैसे दिखता है आपको? Venation is parallel. बट बनानाचे रूट्स तर टॅप रूट्स असतात ना? हा, पण त्याच्यामध्ये वेनेशन कसं दिसतं? नाही, फायब्रस रूटच दिसतात बनानामध्ये पण. तुला बघ, तू एकदा पाहून घे, ठीक आहे. फायब्रस दिसतात, जास्त टॅप नाही दिसत. टॅप वाले नसतात रूट, त्याच्या खाली डीपली पेनेट्रेट नाही होत. म्हणून बघ, हा वादळ वगैरे आलं तर बनानाचं खूप जास्त नुकसान होतं. कारण है. अब देखो, आपको ऐसे ही पैरेलल वेनेशन ग्रासेस में भी दिखाई देंगे. ग्रासेस लाइक बैम्बू में भी आपको ऐसे दिखाई देंगे, ऐसा असतं ना ग्रास से भी, इसमें भी आपको ऐसे वेनेशन दिखाई देंगे, जिसे आप बोलते हो पैरेलल वेनेशन. और ये डाइकॉट में कैसे दिखाई देगा? लाइक मैंगो, Reticulate. इज रेटिकुलेट वेनेशन. अब देखो, नेक्स्ट वर्ड है फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी का मैंने बताया था आपको, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ. फाइलोटैक्सी का मीनिंग क्या है? Arrangement of leaves. ओवर द स्टेम, क्या अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ओवर द स्टेम, ऐसा यू कैन से. अब देखो ये अरेंजमेंट कैसे हो सकती है. सपोज ये स्टेम है, ठीक है, तो एक लीफ यहाँ पर आया, एक लीफ यहाँ पर आया, एक लीफ यहाँ पर आया, एक लीफ यहाँ पर आया. इसे हम क्या बोलेंगे पता है आपको? इसे हम बोलते हैं अपोजिट. क्या बोलोगे आप इसे? अपोजिट फाइलोटैक्सी. अलग अलग टाइप है फाइलोटैक्सी. और दूसरा वाला होता है जहाँ पे एक लीफ यहाँ पर आएगा, एक लीफ यहाँ पर आएगा, एक लीफ यहाँ पर आएगा, एक लीफ यहाँ पर. इसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट. ऑल्टरनेट. और एक टाइप होता है जिसमें सपोज ये स्टेम है, तो स्टेम के यहाँ पर एक लीफ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. इसे बोलते हैं हम होरल्ड. क्या बोलते हैं इसे? होरल्ड. ऐसे लीफ आएंगे एक ही पॉइंट. जब एक ही पॉइंट पे लीफ आते हैं तब इसे हम होरल्ड बोलते हैं. तो देखो क्वेश्चन क्या है. हैव यू गॉट व्हाट इज फाइलोटैक्सी? अरे समझ लगा तुम्हाला? यस सर. ओके, खाना नहीं खाया क्या आज? हाँ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी. ठीक है. चलो एक मिनट. अभी देखेंगे हम क्या है ये. हाँ, angiosperm that are characterized by the presence of adventitious roots and the parallel venation. अब इसका मतलब बताओ, क्या मोनोकॉट होंगे या डाइकॉट होंगे?
Adventitious roots or parallel variation. मोनोकॉट आहे सर, बट Monocots. ऍडव्हेंटिशियस रूट्स म्हणजे फायब्रस रूट्स का? हाँ, हाँ, yes, adventitious means fibrous. adventitious roots and parallel venation जिसके पास है, ऐसे जो एंजियोस्पर्म में, इनमें आपको कौन सी फाइलोटैक्सी दिखेगी? सबसे पहले मुझे ये बताओ, एडवेंटिशियस रूट्स और पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या हुआ? Monocot plant. Yes, these are monocots. Okay, so these are monocots. ठीक है, और वो जो मोनोकॉट होते हैं, इनमें जो फाइलोटैक्सी होती है, ये होती है अल्टरनेट। आपने कभी इसको देखा है, ग्रास को? ग्रास में आपने देखा होगा, मेज देखा होगा, या फिर बैम्बू को देखा होगा, उसमें कैसे होता है? ये स्टेम है ना, यहाँ पे एक लीफ होगा, दूसरा लीफ यहाँ से ऐसे निकलेगा। देखा है कभी आप? एक ऐसा निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा। सर, हाँ बोल, दिसलं काय? सर जे करी लीव्स असतात, हा, सर त्याच्यात आपल्याला ऑपोजिट दिसतं ना फायलोटॅक्सी. डायकॉट मध्ये अपोजिट असते ना? डायकॉट मध्ये दिसतं ना, मग करी लीव्स. तर मग करी लीव्स डायकॉट आहेत. हा, करी लीव्स डायकॉट आहेत. त्याच्यामध्ये बघ ना तू, रेटिक्युलेट वेनेशन दिसतं ना, करी लीव्स बघ तू. हा सर, रेटिक्युलेट वेनेशन आणि अपोजिट फायलोटॅक्सी दिसतं. येस येस येस. हे बघ आता, हे काय दिसलं तुला? अल्टरनेट. जनरली ग्रासेस में आपको कैसे दिखता है? ऑल्टरनेट दिखता है। ओके, जनरली ज्यादातर आपको क्या दिखेगा? ऑल्टरनेट दिखेगा। तो व्हाट शुड बी द आंसर? विच फाइलोटैक्सी? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ओके, समझना सर्वांना? यस सर. राज? येस. Raj Kulkarni. Okay, next is, what is the organelle connected with the fat digestion? ग्लायक्सिसोम. It is glyoxysome. ठीक है, glyoxysome. Easy. Next is, earlier mitochondria were named as. ये हमने देखा था, लिहून दिला मी मागच्या वेळेस तुम्हाला. Yes sir. These were called as bioplasts, है ना? लिख के दिया मैंने लास्ट टाइम। एमसीक्यू डिस्कशन देख लो लास्ट वाला, अगर किसी ने देखा नहीं है तो उसमें मैंने डिटेल में लिख के दिया आपको। नेक्स्ट इज, which one of the component element of the cytoskeleton is responsible for polarity to the cell? polarity to the cell यानी क्या? सेल के जो कंपोनेंट है, यानी सपोज क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो एक पार्ट में जाएंगे, दूसरे क्रोमोसोम से एक पार्ट में जाएंगे। कौन करता है ये? हेलो, यस सर. अरे क्वेश्चन देखो ना, क्या है? Which of the following components element of cytoskeleton is responsible for providing polarity to the cell? कौन प्रोवाइड करता है पोलैरिटी? क्रोमोसोम को कौन सेपरेट करता है? कौन है ये? माइक्रोट्यूब्यूल्स. देन स्पिंडल फाइबर. माइक्रोफिलामेंट नहीं हो सकते, इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं हो सकते, इंटरमीडिएट फाइबर नहीं हो सकते। कौन होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और मैंने ये भी लिख के दिया आपको, what is a function of microfilament, what is a function of intermediate filament, है कि नहीं? लिख के दिया। अरे लिहिलेलं आहे तुमच्याकडे सगळं। हमने देखा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, they help in the separation of the chromosomes, right? और ये जो होते हैं ना माइक्रोफिलामेंट, they help in the separation of the cell cytoplasm. और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, they support the microtubules. लिहिलं का नाही? असं शिकवलं का नाही? यस सर. यस, एक बार देख लेना हो। चलो नेक्स्ट इज, बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश एसिड। ये हमने देखा, कार्बोनिक Carbonic acid. इट इज कार्बोनिक एसिड। यस, का सर, म्हणजे त्याचं एक्सप्लेनेशन? बिकॉज दिस कार्बोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइकेन। लाइकेन बनाते हैं, लाइकेन के जो फंगाई होते हैं, ये एसिड बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। और जो रॉक्स होते हैं ना, रॉक जनरली आर द, जो रॉक्स जो होते हैं जनरली दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिन्हें आप सिंपली बोलते हो कार्बोनेट रॉक्स। क्या वर्ड है इनके लिए? कौन से वाले रॉक्स? कार्बोनेट रॉक्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने, म्हणजे चुना माहिती का तुम्हाला? चुना हा शब्द ऐकला का कधी? यस सर. हाँ, ऐकलं का? So these Yes, sir. मराठी मुलांनी ऐकलं असेल, ठीक है? तो ये जो रॉक्स होते हैं, इसे बोलते हैं कार्बोनेट रॉक्स। इन कार्बोनेट रॉक्स को डिसॉल्व करने की एबिलिटी होती है लाइकेन में।
लायकेन क्या करते हैं? लायकेन लायकेन्स हे कॅल्शियम कार्बोनेटला डिझॉल्व्ह करतात आणि त्याचं कार्बोनिक ऍसिड बनवतात असं का? नाही रे बाळा, लायकेन मध्ये काय फंगाय जे आहे, फंगाई रिलीजेस कार्बोनिक एसिड. ओके, सपोज ये रॉक है, इस रॉक पर ये फंगाई ग्रो हो रहा है. ओके, ये फंगाई ग्रो हो रहा है इसमें, तो ये क्या करेगा? दिस विल रिलीज कार्बोनिक एसिड हियर, and this carbonic acid inside by this carbonic acid, this carbonate rocks will get dissolved in this carbonic acid. slow amount में इस कार्बोनिक एसिड में कार्बोनेट रॉक्स डिसॉल्व होंगे और इससे बनेगी सॉइल. एंड दिस सॉइल फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? याद है काय म्हणतो सॉइल फॉर्मेशन ला? पेडोजेनेसिस. Yes, pedogenesis. So why this soil formation occur? Because fungi produces carbonic acid. So this fungi carbonic acid बनाता है. इस कार्बोनिक एसिड से जो रॉक्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और इससे बनता है सॉइल. इसे ही हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस. So this is also called as biological weathering. इसे वर्ड क्या है देखो, बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से वेदरिंग हुई रॉक्स की. वेदरिंग का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किंवा झिजणे म्हणतो आपण त्याला, मराठी झिजणे म्हणतो. तो जो तो ये रॉक्स रॉक जो है उनका वेदरिंग हुआ है. रॉक्स झिजतात म्हणजे त्याचा ब्रेकडाउन होतो रॉक्स. व्हाई द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स occur? It is due to the activity of the fungi of the lichen. This fungi of the lichen, fungal partner of the lichen produces carbonic acid. Inside the carbonic acid, the carbonate rocks are dissolved and it result in the formation of soil, and this formation of soil is called pedogenesis. इसे हम क्या बोलेंगे? pedogenesis. Got this? समझ लगा? Yes, sir. Okay. Next, which of the following are the mineral ions that help in conduction of the nerve impulse? नर इम्पल्स में ये दो मिनरल आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, Na and K+. थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसे कैसे करते हैं, चलो मजा आएगा आपको. प्लीज पे अटेंशन. कैसे नर्व इम्पल्स में इन्वॉल्व होते देखेंगे हम. चलो इधर प्लीज पे अटेंशन. ओके, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं मैं. ये एक न्यूरॉन मैंने ड्रॉ की है. न्यूरॉन को क्या बोलते हैं पता है आपको? नर्व सेल. काय म्हणतो रे आपण याला? हेलो, न्यूरॉनला काय म्हणतो आपण? नर्व सेल. आपने कभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है? देखा है कभी इसका स्ट्रक्चर? येस सर. सर आपला स्पायनल कॉर्ड. न्यूरॉन कुठे असतात? नर्वस सिस्टम. वेयर द न्यूरॉन आर प्रेजेंट? नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते. ठीक है, अब ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया. अब इस न्यूरॉन में ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं आपण याला? डेंड्राइट्स. क्या बोलोगे आप इसे? डेंड्राइट्स. ठीक है, और ये क्या होता है पता है? साइटॉन, या फिर आप इसे क्या बोलोगे? सेल बॉडी. 10वीला शिकले का नाही तुम्ही? 8वी 9वी 10वीला हो सर. शिकले की नाही 8वी 9वी 10वीला? ठीक आहे, ओके. तर हे आपल्याला 12वी मध्ये आहे न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर. ठीक आहे, त्यावेळेस हा काय आवाज नाही येते मला, बोल. हॅलो, बोल ना. देखो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन. और ये एक्सॉन का एंड है. एक्सॉन का जो एंड होता है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल. ओके, तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे आप कभी कभी ऐसे भी स्ट्रक्चर देखते हो एक्सॉन पर. ये ऐसे वाले देखा है कभी आपने?
इन्हें बोला जाता है माइलिन शीथ। क्या बोलते हो आप इसे? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बोलोगे इसे आप। यस, शीथ, माइलिन शीथ बोलते ऋषिकेश पाटील। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, ये जो न्यूरॉन होते हैं, नोड ऑफ रॅनवियर कुठे असते? गजानन ने पूछा है नोड ऑफ रॅनवियर कहाँ पर? तो गजानन हा वाला पार्ट देखो, दो माइलिन शीथ है ना, ये रेड वाला, इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है आपको? ओके, इससे Yes, ही sir. हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रॅनवियर। नोड ऑफ रॅनवियर, ठीक है, ये नोड ऑफ रॅनवियर है, ठीक है। अब देखो क्या दिखता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन, ये एक्सॉन हमने ड्रॉ किया ना, एक्सॉन ब्लैक कलर में लाइन हमने ड्रॉ की थी। एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है ना, इसे एक्सॉन की मेम्ब्रेन हम जो बोलते हैं, दिस एक्सॉन मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द Na+ एंड K+। तो अंदर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा K+ का। आपको पता है कि सेल के साइटोप्लाज्म में K+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और बाहर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है? Na+। ठीक है, जब भी कोई नर्व का इंपल्स कंडक्ट होता है, whenever any nerve impulse occurs, this impulse occurs with the transportation of the Na+ and K+। ये जो इंपल्स है नर्व का, इस नर्व इंपल्स में Na+ और K+, बाहर Na+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर बाहर Na+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर K+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। सो बोथ दीज Na+ K+, यहाँ पे पंप होते हैं, Na+ K+ पंप इज प्रेजेंट हियर एंड दिस Na+ K+ पंप आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इतना याद रखना, ठीक है। तो Na+ अंदर जाएगा, K+ बाहर जाएगा, या फिर K+ वापस अंदर जाएगा, Na+ बाहर जाएगा। इस पर डिपेंड करता है कि ये न्यूरॉन जो होगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट करेगी, राइट। सो अभी याद रखना, अभी इतना याद रखना, K+ एंड Na+, both of these are involved in the conduction of nerve impulse। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुठे गेलं रे ते? पीछे चले गए आप। Just a minute, it will take time to recall। क्या इश्यू है इससे? ओपन ही नहीं हो रहा है। दोन टेस्ट होत्या बघा 31 तारखेला आपल्या, दोन्ही पण डिस्कस केल्या पाहिजेत आपण। अभी ये डिस्कस की ना हमने, ये डिस्कस कर रहे थे। हाँ सर। का ओपन होते हैं यार? होता हूँ मैं 2 मिनिट। सर कोणीतरी दुसऱ्याने स्क्रीन शेअर केली तर? नाही नाही, स्क्रीनचा नाही प्रश्न हा, त्या वेबसाईटच्या वेबसाईटवर लोड होतो कधी कधी।
नाही मीन्स सर त्याच्याकडे पण ती टेस्ट असेल ना, मग आपल्याला क्वेश्चन्स तर बघता येतील. काय 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 मीन्स समजा दुसऱ्याने कोणी जर स्क्रीन शेअर केली ना, तर त्याच्या अकाउंटवरनं आपल्याला क्वेश्चन्स बघता येतील ना. हो, पण तुमच्याकडे ओपन होतं का ते पाहावं लागेल ना तुम्हाला. होतो पण सर, करा आमची screen. टेस्ट आम्हाला दिसते सर. कोण कोण करते स्क्रीन शेअर? मग तू करतेस का? कसंही तुझं ओपन झालंय का मला सांगतो. करते, 1 सेकंद. कर तू ओपन होते का? तुझं ओपन झाल्यावर सांग, मी तुला होस्ट बनवतो. हो सर, 1 मिनिट. थोडेच क्वेश्चन राहिले होते त्यातले, मग आपण नीट पण डिस्कस केलं असतं. ओपनच होत नाही. काय झालं सर? अरे ते डॉक्युमेंट ओपन होत नाही, ते लोड आला त्या वेबसाईट. सर 31 तारखेची टेस्ट ना हा, झाली हो पण माझी. ती झाली का? तुला होस्ट करतो. येस. तुझं नाव दिसत नाही ना? तुझं नाव कुठे खाली का? सर तुम्ही आता माझ्याच टेस्ट वरून करत होता सर ना? फक्त सगळ्यांचं स्क्रीन शेअर चालू ठेवा, मी करते शेअर. होस्ट करायची गरज नाहीये. बघ बरं, तुला करता येते का? 1 मिनिट. तुला होस्ट करावं लागेल दोन्ही मला, त्याशिवाय नाही होणार. सर माझं पण होतंय, म्हणजे आता क्रमाने व्यवस्थित होईल तर. जस्ट मिनिट. भार्गवी भक्ती ना ग? भार्गवी सर. भार्गवी. मेक होस्ट कर आता स्क्रीन शेअर. चल. येस. सर स्क्रीन दिसते माझी? हा हा, दिसते. ओपन कर आता. होते का? 1 सेकंद सर. सर हा झाला? हाँ झाला. यस, ये हाँ नहीं झालेला. नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन क्या है. In diet, the sporangium has the long, slender and cylindrical capsule. Capsule कोणामध्ये असतं रे? Okay, so long cylindrical capsule. Capsule is present in the bryophytes ना? Bryophytes and pteridophytes, बरोबर? Bryophytes आणि pteridophyte मध्ये capsule present असतं, right? तर याचा आन्सर अँथोसेरॉस आहे. बिकॉज आता मी त्या स्क्रीनवर तुम्हाला डायरेक्टली पिक्चर नाही दाखवू शकत, बट रिमेंबर दिस, the anthoceraus have the long capsule. उसके पास जो होता है वो long capsule is present. ओके, तो अगर आप एंथोसेरॉस का पिक्चर देखोगे, एंथोसेरॉस एक टाइप का हॉर्न वर्ट है. जैसे लीवर वर्ट होता है, वैसे ये क्या है? हॉर्न वर्ट है. इट इज अ टाइप ऑफ द हॉर्न वर्ट, राइट? एंड इसके पास एक कैप्सूल होता है. दैट कैप्सूल इज अ लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is correct for DNA and not for RNA?
डीएनए के लिए क्या करेक्ट है? इन केस ऑफ पेयरिंग सी जी इज इक्वल टू सी, ए इज करेक्ट. कॉम्प्लीमेंटरी पेयरिंग occurs between the A and U. A and U is the pairing. सुनो, ये जो पेयरिंग होता है ना A and U वाला पेयरिंग किस में होगा? इट इज प्रेजेंट इन RNA ओनली. ठीक है, RNA only. Okay, so which of the following statement is correct for DNA and not for the RNA? G और C का जो पेयरिंग होता है ना, सुन लो मेरी बात, जो A ऑप्शन दिया है, G और C का जो पेयरिंग होता है, G फॉर गॉनिन, C इज फॉर साइटोसिन. डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, गॉनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है डीएनए में. और G और C की पेयरिंग जो होती है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. यहाँ पे बॉन्ड कौन सा दिखा है? ए ऑप्शन देखो, काय दिसतो तुम्हाला ए ऑप्शन मध्ये? फक्त किती बॉन्ड दिसतात? टेल मी. 2. 2 बॉन्ड दिसतात, दोनच बॉन्ड दिसतात, तर तिथे 3 बॉन्ड पाहिजे. सो ए कॅनॉट बी करेक्ट. कॉम्प्लिमेंटरी पेयरिंग ऑकर्स बिटवीन द ए एंड यू. तर डीएनए मध्ये यूरैसिल नसतंच, डीएनए में यूरैसिल होता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता यहाँ पे. एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है, ऑल ऑफ यू नो दैट डीएनए कैन डू द रेप्लिकेशन, लेकिन आरएनए खुद का रेप्लिकेशन नहीं कर सकता. आरएनए बनने के लिए क्या चाहिए? डीएनए चाहिए. डीएनए पर से आरएनए बनता है, बरोबर? डीएनए वरून आरएनए बनतो. यू नो ऑल दिस, राइट? सो ऑप्शन सी, एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन इज करेक्ट. नेक्स्ट, बैक्टीरिया विथ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला on both sides is known as Lopotrichus. yes, लोफोट्राइकस बोलते हैं इसे. जब दोनों साइड में होगा तब इसे लोफोट्राइकस बोलते हैं. Next. सर हे आपण डिस्कस केलेलं. हो, डिस्कस केलाय, पण मी आता नेक्स्ट टाइम पुन्हा डिस्कस करायला. आता मला स्क्रीन शेअर नाही करता येते, मला पिक्चर नाही काढता येत ना. ठीक आहे, हा सर, ते लोफोट्रायकस ते मला माहिती नव्हतं. ओके. बैक्टीरिया विथ द ग्रुप झालं. पुढे अर्लियर माइटोकॉन्ड्रिया झाला. Bioplast. Yes. In prokaryotic cell, which of the following is not protoplasmic cell inclusion? सर या क्वेश्चनच नाही मैं करणार. सांगतो तुम्हाला. प्रोटोप्लाज्मिक सेल इंक्लूजन मीन्स क्या होता है? देखो, बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है, द फूड और द मिनरल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉडीज विच आर कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज. ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो फूड स्टोर होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द बॉडीज कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज. तो बैक्टीरिया में स्टार्च ग्रैन्यूल होते हैं प्रेजेंट, सल्फर एंड फॉस्फोरस ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं. रैफाइड भी एक टाइप के प्रोटीन के क्रिस्टल होते हैं. रैफाइड आर आल्सो द प्रोटीन क्रिस्टल. लेकिन ये सिस्टोलिथ जो होता है, ये दिस इज नॉट अ प्रोटीन, दिस इज नॉट अ क्रिस्टल. सो आंसर शुड बी द सी. यहाँ पे याद रखो, व्हाट इज द इंक्लूजन बॉडी? इंक्लूजन बॉडी इज द स्ट्रक्चर which store the food in the bacteria. So A, starch granule are present, sulfur and phosphorus, B are present, and D is also present, but the C is not present. ठीक है, next is for the systematic arrangement of the herbarium species, which system is followed by every herbarium? हर्बेरियम की अगर आपको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करनी है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आंसर ऐसा हमने कभी देखा क्या? हर्बेरियम काही मुलांनी हा सर, हर्बेरियम साठी आपण सिस्टम थोडी ना फॉलो करतो. नहीं करत असं काही सिस्टम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्या? एनी वन स्टैंडर्ड, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको एंगुलर और फ्रंटल इंटरमैन ऊपर करना है, असं काही नसतं, राइट? सो एनी वन स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड सिस्टम. ठीक है, बी. नेक्स्ट इज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद बटरफ्लाई कोरोला एंड डायडेल्फस स्टेमस आर फाउंड इन. देखो, इसकी जो फैमिली है ना, ये फैबेसी है. ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर यानी ये कैसे फ्लावर होते हैं की जिनका जो फ्लावर बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं. याचं स्ट्रक्चर नंतर तुम्हाला काढून दाखवेन. और ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ज़ाइगोमॉर्फिक यानी जो असिमेट्रिकल फ्लावर होते हैं, जो बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं फ्लावर, ये जो आपको दिखाई देंगे, ये आपको फैबेसी में दिखाई देंगे. फैबेसी का मतलब है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लाइक सोयाबीन है ना, ग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं पी प्लांट, इनमें आपको ये दिखाई देते हैं. तो इसका आंसर है फैबेसी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सर, जर तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं असेल ना, तुम्ही आज स्क्रीनवर अॅनोटेट करा ना मग, आणि तुम्हीच क्लिअर करा, ते होईल, इझी होईल तुम्हाला. सर, आणि हे असे क्वेश्चन्स येण्यासाठी काय म्हणजे आता NCERT किंवा स्टेट बोर्ड बुक
मध्ये हे तर नव्हतं दिलेलं, मग असे क्वेश्चन्स कसे येतील नाही सर? नाही, ते पुढे पुढे जाऊन होतील, ते आपल्याकडे आहेत पुढच्या सिलेबस मध्ये काही ते होतील. ओके, म्हणजे हा पुढच्या पोर्शन मधला क्वेश्चन आहे का? आलाय तो चुकून आला त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, नेक्स्ट प्लीज. आपण Okay. करूयात आता, फक्त 2-3 मिनिट बाकी आहेत ना, मग आता annotate नको करायला. ठीक आहे ना. व्हॉट इज द Okay. अप्रॉक्सिमेट विड्थ ऑफ फ्लॅटन स्पेस एन्क्लोज्ड? आता इथं माहिती तुम्हाला, इट इज हा 150. 150 एम्स्ट्रॉम. सर आर्मस्ट्रॉंगला तर तर इथे तर सेल्सिअस त्यांनी Unit सेल्सिअस दिलंय, सेल्सिअस नाहीये, ते एम्स्ट्रॉम पाहिजे. ओके, म्हणजे ए आहे ना तिथे हे सीच्या. पाहिजे तिथे. हो, येस. हा, म्हणूनच मी पण कन्फ्युज झाले. ओके. आता हे तर तुम्ही शिकले होते, व्हॉट इज द सीट ऑफ मियोसिस? दिस वी हॅव लर्न. लोक्यूट. मियोसिस कुठे होतं? अँथर लोक्यूल. लोक्यूट. येस, अँथर लोक्यूल म्हणजे काय? अँथर चेंबर है ना, अँथरचा चेंबर, त्यालाच काय म्हणतो आपण? अँथर लोक्यूल. एक अँथर मध्ये किती चेंबर असतात? 2. मग अँथर इज अ बायलोब स्ट्रक्चर, राइट ना? अँथर इज अ बायलोब स्ट्रक्चर. सीखा है ना हमने? येस सर. Anther is bilobe structure. Then how many chambers will be present? Total 4 chambers will be present, right? Each chamber is called as locular. So option B is correct. Next is, who proposed the universally accepted double stranded helical structure? ये हमने देखा वैटसन एंड क्रिक. नेक्स्ट, ये भी देखा हमने ग्लाइक्सो. नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन ऑफ साइकस, ये हमने देखा था क्वेश्चन लास्ट टाइम, है ना? इट इज अ साइफोनोगैमस, ये हमने देखा था ना. तर सायफोनोगॅमस काय असतं? साइफोनोगैमस मींस ट्यूब, पोलन ट्यूब बनती है क्या नहीं साइकस में? येस सर. फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब देखा था कि नहीं हमने? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब अकर्स बोथ इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. लेकिन जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, इट इज नॉन मोटाइल, है ना? मेल गैमेट कैसे होता है? अगर आप देखोगे तो इट इज नॉन मोटाइल. मेल गैमेट जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है. तो आंसर क्या है इसका? साइफोनोगैमस. अब देखो इसका ज़ूआइडोगैमस. ज़ूआइडोगैमस यानी जो मेल गैमेट होता है दैट इज पास थ्रू द, मेल गैमेट जो होते हैं किससे पास होते हैं? दे आर पास थ्रू द पोलन ट्यूब. तो इसका आंसर है ज़ूआइडो. ज़ूआइडो यानी दे कैन मूव थ्रू द पोलन ट्यूब. तो क्या आप इसे बोलोगे? ज़ूआइडोगैमस. तर म्हणजे सायफोनोगॅमस नॉन मोटाइल असतो का? सायफोनोगॅमस म्हणजे पोलन ट्यूब असते, पोलन ट्यूब. And through the pollen tube the male gametes are passed, then it is called as siphonogamy and zooidogamous. ओके, म्हणजे सायफोनोगॅमस म्हणजे ज्या पोलन ट्यूब मधून मेल गॅमेट्स पास होऊ शकतात. Yes, yes, yes. मग झुडिओगॅमस ते काय असतं? Siphonogamous is a type of fertilization. पहिला point clear करा. Siphonogamy is the type of fertilization in which the male gametes are passed through the pollen tube. Is it clear? ये clear है क्या आपको? ठीक है? येस सर. और इसमें जो साइकस जो होता है, इसमें जो मेल गैमेट होता है ना, ये सीलिएटेड होता है. कैसे होता है? कैसे होता है? Ciliated. So as the male gamete is ciliated in this siphonogamy जो होता है साइकस में जो मेल गैमेट होता है वो सीलिएटेड होता है. सीलिएटेड होता है तो मेल गैमेट भी मूवमेंट कर सकता है. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ज़ूआइडोगैमी. क्या बोलोगे आप इसे? ज़ूआइडोगैमी. So ज़ूआइडोगैमी is a type of fertilization in which the ciliated male gamete that take participate in the formation or fertilization. लिखना है तो लिख लो. In cycus, if you want to write, you can write. In cycus, the male gametes are ciliated. This is only related to the cycus. Male gametes are ciliated and it is called zooidogamy. This is called zooidogamy. Zooidogamy. Yes. लिखा आपने? In cycus, the male gametes are ciliated and this is called as zooidogamy. Okay, next question. Due to the lack of data, gymnosperm seeds are naked. क्या होता है? Due to the absence of the pericarp. Pericarp का मतलब यहाँ पे ovary है, right? Ovary is absent in the gymnosperm, right? So ovary is absent in the gymnosperm, so the seeds are not having the covering of the fruit around them. So answer should be pericarp. सर इंटॅग्युमेंट्स पण तेच असतं ना?
इंटेग्युमेंट जे आहे, इंटेग्युमेंट इज द पार्ट ऑफ ओव्ह्यूल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओव्हरी. ओके. इंटेग्युमेंट इज द पार्ट ऑफ ओव्ह्यूल ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सीड. यस. इट इज अ पार्ट ऑफ सीड. सो सीड के बाहर क्या होता है, फ्रूट बनता है. फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है. ओवरी इज द पेरिकार्प. सो आंसर शुड बी पेरिकार्प, सी. ओके सर. ओके, नेक्स्ट. We will stop this lecture. आपण स्टॉप करायचं का, 3 वाजलेत. मला वाटतं सर्वांना लेक्चर आहे दुसरं. तुम्हाला लेक्चर आहे का सर्वांना? यस. सर मॅथ्सचं आहे ना. सर ओके, सो we will stop here. ओके, नंतर कंटिन्यू करू आपण. ओके चलो. ओके सर. बाय सर सर. मीटिंग एंड करू. हा करू, केली तरी चालेल. ओके. थँक यू सर. थँक्यू. चल बाय.